Hello everyone. From today we are going to start a pharmacology series. In this series I am going to teach you topics which will be very important for your internal examination, your prelims examination as well as your university examination. So first of all we are going to start with the autonomic nervous system, that is ANS. The autonomic nervous system is the base of pharmac. If you have a proper grip on ANS, your pharmac will be very easy for you. So, in the first lecture, we are going to first of all study about the receptors and their location. I will introduce you with the ANS and about the receptors. Then in further lecture, we will going to cover cholinergics and about anticholinergics, adrenergics, beta blockers, and the short notes. In short notes, we will include topics such as alpha blockers, then OP poisoning, and many other such topics. So today, first we will start with what is a base of a nervous system. So we all know that the nervous system is divided into central nervous system and peripheral nervous system. The peripheral nervous system is further divided into autonomic nervous system and somatic nervous system. Now ANS जो हमको पढ़ना है, it is further divided into sympathetic and parasympathetic nervous system. Now you need to know more about this sympathetic system and parasympathetic system. The neurotransmitter for the sympathetic system is norepinephrine, while the neurotransmitter for the parasympathetic system is acetylcholine. Okay, for the parasympathetic the neurotransmitter is acetylcholine. So first of all I will teach about the receptors. So the cholinergic receptors, these are mainly of two types, that are muscarinic receptors and nicotinic receptors. The muscarinic receptors are of five types: M1, M2, M3, M4 and M5. And the nicotinic receptors are of two types, that are NM and NN receptors. The muscarinic receptors are basically GPCR receptors, that is glycoprotein coupled receptors, and the nicotinic receptors are ligand gated receptors. Okay, these are both the family of receptors. You might have studied it into general pharmacology. Now first of all we will start with muscarinic receptors. ठीक है, तो चलिए muscarinic receptors मैंने आपको बताया कि they are mainly 5 types. We have to mainly study this 3 types. Okay, तो सबसे पहले M1 receptor. तो M1 receptor का लोकेशन कहाँ है? That are situated into the stomach. Where? Into the stomach. So the drug will come, it will stimulate the M1 receptor, and what will be the action? Action क्या होगा? There will be increase in the secretion of HCl. So M1 receptor stimulate हुआ और HCl का secretion बढ़ा, ये नॉर्मल फंक्शन. पर अगर ओवर एक्शन होता है, ओवर एक्शन होने से क्या होगा? M1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा और गैस्ट्राइटिस हो सकता है. ओवर सिक्रेशन ऑफ HCl में लीड टू गैस्ट्राइटिस. तो आपको अभी याद यही रखना है कि M1 रिसेप्टर कहाँ सिचुएटेड है? स्टमक में. स्टमक में उसका एक्शन क्या है? HCl सिक्रेशन को बढ़ाना. ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ पे ड्रग्स लिखे हैं, ये ड्रग्स जब आपको मैं कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ाऊँगा तब आपको पता चलेंगे. आपको एगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट के बारे में आपने जनरल फार्मेक में पढ़ा होगा. ठीक है, तो दैट्स अबाउट M1 रिसेप्टर. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू M2 रिसेप्टर. तो M2 रिसेप्टर का लोकेशन मेनली आपके होता है हार्ट में. ठीक है, अब हार्ट में भी कहाँ? दैट इज ऑन AV नोड एंड
SA node. ठीक है, तो what will be the action on AV node and AC node? They will reduce the conduction velocity of impulse via AV node which will result into bradycardia. क्या होगा? ब्रैडीकार्डिया. ब्रैडीकार्डिया मीन्स डिक्रीज इन हार्ट रेट. सिमिलरली ये जो ड्रग्स है ये आपको आगे पता चलेंगे. ठीक है, तो M2 रिसेप्टर का क्या था? AV और SA नोड पे जाके एक्ट करेगा और ब्रैडीकार्डिया कॉज करेगा. ठीक है, सो दैट्स अबाउट M2 रिसेप्टर. नाउ M3 रिसेप्टर्स. M3 रिसेप्टर की लोकेशन कहाँ कहाँ है? एक तो आपके स्मूथ मसल्स, फिर आइज और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. अब हमारे बॉडी में स्मूथ मसल्स दो टाइप के होते हैं. एक है आपके वैस्कुलर स्मूथ मसल्स और एक है आपके विसरल स्मूथ मसल्स, है ना. तो हम एक एक करके स्मूथ मसल्स, आइज और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इन पे M3 रिसेप्टर का एक्शन देखेंगे. ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं वैस्कुलर स्मूथ मसल्स. ठीक है, अब वैस्कुलर स्मूथ मसल्स मतलब लोकेशन कहाँ हो गई? एग्जैक्टली एंडोथीलियम पे. तो एंडोथीलियम ऑफ द स्मूथ मसल्स पे आपके M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. सो एक्शन क्या कराएंगे? बाय रिलीज ऑफ EDRF. सो व्हाट इज EDRF? EDRF इज एंडोथीलियम डिराइव्ड रिलीजिंग फैक्टर. एंडोथीलियम डिराइव्ड रिलीजिंग फैक्टर. सो एंडोथीलियम डिराइव्ड रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज करके दे विल कॉज वैसो डायलेशन एंड हाइपोटेंशन. ठीक है, क्या एक्शन हो गई? मेनली वैसो डायलेशन, इसकी वजह से रिलीज ऑफ EDRF ऑन वैस्कुलर स्मूथ मसल्स. ठीक है, तो क्या हुआ? M3 रिसेप्टर आया, EDRF रिलीज किया, जिसके कारण हुआ वैसो डायलेशन. ठीक है, ये हो गया वैस्कुलर स्मूथ मसल्स. अब विसरल स्मूथ मसल्स. अब विसरल स्मूथ मसल्स का पहले लोकेशन, वेयर इट इज सिचुएटेड, इट आर लोकेटेड ऑन द ब्रोंकस. तो ब्रोंकस पे आपका M3 रिसेप्टर प्रेजेंट है. तो ब्रोंकस पे ड्रग आएगा, M3 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और क्या कॉज करेगा? ब्रोंकोस्पाज्म, मतलब ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन. यहाँ डायलेशन हो रहा था, यहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है. मतलब वैस्कुलर स्मूथ मसल पे डायलेशन है, वैसो डायलेशन है, और विसरल स्मूथ मसल्स पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है, मतलब ब्रोंको स्पाज्म है. ठीक है, अब नेक्स्ट M3 रिसेप्टर कहाँ है आपका? इंटेस्टाइन और ब्लैडर पे. यहाँ पे भी स्मूथ मसल्स होते हैं. अब लोकेशन मिल गया, इंटेस्टाइन और ब्लैडर, यहाँ पे सिचुएटेड आपके M3 रिसेप्टर्स. अब एक्शन क्या कराएंगे? M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके दे विल इंक्रीज द इंटेस्टाइनल एंड ब्लैडर मोटिलिटी, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोकाइनेटिक एक्शन. ठीक है, अब अगर इंटेस्टाइन और ब्लैडर की मोटिलिटी बढ़ गई, इसका मतलब कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो आप इसको? कॉन्स्टिपेशन के केस में यूज़ कर सकते हो, यूरिनरी रिटेंशन के केस में यूज़ कर सकते हो, और पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस में यूज़ कर सकते हो. अब कैसे? तो थोड़ा दिमाग लगाओ. अगर इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ गई, इसका मतलब आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो गया. अगर ब्लैडर की मोटिलिटी बढ़ गई, इसका मतलब यूरिनरी रिटेंशन रिलीव हो गया. ठीक है, तो सबसे पहले स्मूथ मसल्स पे हमने देख लिया M3 रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ था. वैस्कुलर स्मूथ मसल, विसरल स्मूथ मसल्स, एंडोथीलियम पे जाके वैसोडाइलेशन, ब्रोंकस पे जाके ब्रोंकोस्पाज्म, और इंटेस्टाइन और ब्लैडर पे जाके प्रोकाइनेटिक एक्शन, मतलब मोटिलिटी बढ़ा रहा था. ठीक है, अब M3 रिसेप्टर स्मूथ मसल हो गया. अब जाते हैं आइज पे. अब आइज पे जो अपना प्यूपिल होता है, it is mainly surrounded by two types of muscles, that are circular muscles and radial muscles. ठीक है, अब the circular muscles are mainly responsible for the constriction of the pupil and the radial muscles are responsible for the dilatation of the pupil. ठीक है, now the M3 receptor is mainly situated onto the constrictor muscle. ठीक है, constrictor muscle मतलब sphincter muscle हो गया. ठीक है, अब
क्या करेगा, M3 रिसेप्टर जाएगा आपके कॉन्स्ट्रिक्टर मसल पे एंड विल कॉज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल. Constriction of the pupil is known as meiosis. Meiosis means constriction of the pupil. ठीक है, this might be a new term for you all. Meiosis. ठीक है, eyes, constrictor muscle, meiosis. Now this which line I have written, this M3 agonist acting on eye is pilocarpine, which will cause meiosis. So in the chapter we will learn about all these drugs, you will come to know. Now this also one important line, M3 agonist useful for treatment of glaucoma. See, so when I will teach you glaucoma, you will come to know this use. Okay, now first of all we will just complete the receptors. The next one is M3 receptor on exocrine glands. We have studied about smooth muscles, eyes, and now third one is exocrine glands. So which are the exocrine glands? The salivary glands, lacrimal glands, and sweat glands. So what will happen by stimulation of the M3 receptor on exocrine glands? It will increase into their secretions. That is, it will promote their function. Okay. अब फंक्शन अगर प्रमोट हो रहा है, इसका मतलब सलाइवरी सिक्रेशन बढ़ेगा, लैक्रिमल सिक्रेशन बढ़ेगा और स्वेट का सिक्रेशन बढ़ेगा. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट मस्करेनिक रिसेप्टर्स. ठीक है, द M4 and M5 are mainly situated on CNS. Okay, that are not that much important, just need to learn M1, M2 and M3. ठीक है, तो आपको ये तीनों रिसेप्टर्स के लोकेशन, एक्शन, एटलीस्ट ये तो भी आपको याद होनी चाहिए. अगर ये आपको लर्न है, इसका मतलब आपका पूरा ANS ये जाएगा. ठीक है, सो मस्करेनिक रिसेप्टर्स क्लियर. नाउ वी विल मूव टू निकोटिनिक रिसेप्टर्स. Now there are mainly two types of nicotinic receptors, that are NM receptors and NN receptors. ठीक है, so जो NM है, तो this M stands for muscle. मतलब इसका लोकेशन क्या हो गया, लोकेशन is on the skeletal muscle. Now what is the action? It causes contraction of the skeletal muscle, contraction of the skeletal muscles. ठीक है, नाउ ये जो माइस्थीनिया ग्रेविस का पॉइंट है, आई विल टीच यू अबाउट नियोस्टिग्मिन, तब आपको ये माइस्थीनिया ग्रेविस में क्यों यूज होता है ये पता चलेगा. ठीक है, अब NM रिसेप्टर पता चल गया. NM रिसेप्टर कहाँ है, स्केलेटल मसल पे क्या कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन. नाउ the NN receptors. The NN receptors are mainly located into the sympathetic and parasympathetic ganglia. ठीक है, now ये जो मेनली रिसेप्टर्स होते हैं, इनमें जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हम पढ़ते हैं, NN ब्लॉकर्स, विच आर मेनली गिवन इन हाइपरटेंशन. ये जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे यू विल कम टू नो अबाउट इट. ठीक है, तो आज वी हैव लर्नड अबाउट all the receptors. ठीक है, मस्करेनिक रिसेप्टर्स एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स. ठीक है, सो ये आपको लर्न करना है, देयर एक्शन एंड देयर यूजेस. ठीक है, अगर आपको ये याद हो गया, इसका मतलब आपका जो ANS है बहुत इजी जाएगा आपको. ठीक है, सो that's all for today. Thank you.